Narayan. For this video, I have taken up a shlok from Vivek Chudamani, a beautiful scripture by Adya Shankaracharya, and I'm going to discuss this particular shlok. And this means that the shlok says that all the wealth, all the affluence and prosperity combined cannot be concluded to be the means of acquiring moksha. This particular verse of the Shruti establishes the fact that karma is not the reason for moksha. Now, there are two words here, moksha and karma. I will uh, describe their interpretation for this particular shlok. Now, karma here is to be meant as this: all the efforts, all the exertion that we put in for the acquisition of earth. Earth means all material objects of all description, that is gold, that is land, that is money, wealth, property, and everything that can be acquired, that is of material nature, that is called as earth. So all the efforts and exertion that we put in to acquire this earth, this material objects, is called as karma here. It is to be understood in this sense. And moksha here is to be understood in the sense that moksha means to achieve immortality, to achieve eternality, to achieve indestructibility. Because Sri Krishna, even in Bhagavad Gita, says that the soul is immortal, the soul is indestructible. So, when we identify our own self, our own soul with the Supreme Soul, we identify the oneness of these two particular souls. We, when we realize this, only then we become eligible to acquire moksha. So, this is very, very important. So the slok is this, and it is to be the moksha and karma here in this slok is to be understood in this sense. Now, if I take an example that there is a very wealthy man who is, perhaps we can take, who is a king of this earth, who has all the wealth at his disposal, everything is at his beck and call, everyone is at his beck and call, all kinds of wealth sit at his footstool, and he goes with all his wealth to an accomplished guru, and he puts up a question to his guru, that saying that I know that the four goals, the four purusharth of human life is dharma, artha, kam, and moksha. And moksha I know is the last, but it is the foremost of all the four goals. So if I want to acquire moksha, I have all this wealth with me. Tell me, will a part of it suffice for acquiring moksha, or will I have to partake the entire wealth of my kingdom for acquiring moksha? And then the guru stubbornly answers him, saying, no, no, and no, thrice. Now, in our ancient times, it was a custom for anyone. If I give you a promise or a commitment, and if I give you a commitment saying that I will do this as you say, and if I repeat it thrice, there is a reason behind this repetition, because when I repeat it thrice, I repeat it from the mind, body, and spirit. I reconfirm, I reaffirm my own commitment to you. I don't even say only once. If I say it once, I mean it. But if I say it second time and third time, I mean it from my mind, body, and spirit completely. And I abide by my commitment. And if I say it thrice, I am actually saying it from my own soul itself, from my own heart, from my own mind, and I will not deter from this commitment. So there was a custom in ancient times of repeating a commitment or a promise thrice. The same thing happens in Valmiki Ramayana. A small example, that when Rishi Vishwamitra comes to uh, King Dashrath, and he says that I am facing a lot of interruption in my sacrifice, so I want something from you. And the king, before knowing that he is going to ask of Sri Rama, the king Dashrath promises to the rishi that whatever you say, I will do it. And he says it thrice: whatever you say, I will do it. Just ask of me. Without realizing that Rishi Vishwamitra is going to ask of Sri Rama, his pet son, which is most difficult for him to part away. So this was a custom where people used to repeat it, a promise or a commitment, three times.
So the guru then tells the disciple, the king, that no, no, and no. Even if you give your entire wealth to me, all your prosperity is not sufficient for acquiring moksha. And then Adya Shankaracharya gives an example of Sruti again. Now, Sruti here is meant by the Vedas and the Upanishads. And in the Brihadaranyaka Upanishad, there is a conversation between Rishi Yagyavalkya and his two wives. Rishi Yagyavalkya has two wives. One is Katyayani, the second is Maitreyi. Katyayani is by nature worldly minded and she is indulgent in the material pleasures. And Maitreyi is by default, by nature, she is dispassionate. She wants to achieve the immortal state. And then when he leaves, he decides to leave. And I am leaving to the forest. I will leave you both with my wealth. I will divide it into two. One is to Katyayani and the second is to Maitreyi. And Katyayani is rejoiced to listen to this proclamation of her husband. And then Maitreyi is very sad and she puts up a question to her husband saying that if you leave me with this wealth of yours, all this wealth, all this affluence, will this wealth and affluence help me to achieve that immortal state, to achieve that state of indestructibility? And the simple answer of Yagyavalkya is this, that no, all the comforts, all the wealth that I am leaving up to you, for you, it will only give you comfort, it will only give you rest. Beyond that, you will be again searching for something more. So this wealth has a limit. It will only give you comfort. Beyond that, it will not give you anything else. It will not give you moksha. So this is the answer of Yagyavalkya. So Maitreyi understands that no, this is not something that I want. I want the immortal state. So she understands and she is the wise one. So through this allegory, the Shruti, the maxim that karma is not the root of moksha is established. Now, karma here is to be understood in the sense that all karma that we put in to acquire wealth, not the other karma that we put in to acquire dharma, put in to acquire penance, sacrifices, and austerities. So, karma here is to be meant only that karma which is invested to acquire all the wealth. So this is the particular meaning of the slok, and the slok earlier than this also clarifies that even if a man reads all the scriptures, he understands all the scriptures, even if he chants the names of all the gods, even for a million times, he will not be able to achieve moksha even after the life of 100 Brahmas. And only when he realizes the oneness of his own soul with the Supreme Soul, only after that realization will a man be eligible to acquire moksha. So this is a very big statement. Even after the life of 100 Brahmas, a man cannot acquire moksha, even with all the wealth, with all the knowledge of the scriptures, with all the sacrifices, with all the penance, all the jap, tap, vrat. Only when he realizes the oneness of his own soul with the Supreme Soul will he be eligible, will he be accustomed and equipped with the knowledge to acquire moksha. This is the crux of these two sloks. ये जो वीडियो के लिए मैंने एक श्लोक लिया है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, आद्य शंकराचार्य का लिखा हुआ ये है ग्रंथ, और इसमें से ये श्लोक लिया हुआ है, और जिसका अर्थ ये है कि सभी धन को मिलाकर, सभी संपत्ति को मिलाकर, सभी वैभव ऐश्वर्य सब कुछ मिलाकर, इस सभी से भी ये आशा नहीं रखी जा सकती कि ये सभी हमें मोक्ष दिला सके। तो ये जो श्रुति का एक श्लोक है, इसके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि कर्म जो है वह मोक्ष का कारण नहीं है। अभी इसमें जो दो शब्द है मोक्ष और कर्म, इसका भावार्थ यहाँ पर कैसे समझना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कर्म यहाँ पर उसी को समझना चाहिए कि जो भी कर्म हम खर्च करते हैं अर्थोपार्जन के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए। अर्थ क्या है? अर्थ माने जो भी भोग्य पदार्थ है, धन है, वैभव है, भूमि है, जर जवेरात है, सब कुछ जो भोग्य पदार्थ है जिसको हम प्राप्त करते हैं, जो भोग्य जिसका हम भोग करते हैं, धन का भोग करते हैं, हम भूमि का भोग करते हैं, तो उसको सभी को मिलाकर जो भी भोग्य पदार्थ है उसको
यहाँ पर अर्थ कहा गया है, और अर्थ को प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म को खर्च करते हैं, सुबह शाम रात दिन मेहनत करते हैं धन प्राप्ति के लिए, भूमि प्राप्ति के लिए, सोना चांदी सब कुछ, गाड़ी बंगला सब प्राप्त करने के लिए जो भी कर्म खर्च करते हैं, वही उसी को यहाँ पर कर्म में समझा जाना चाहिए। वो कर्म नहीं जो हम धर्म के लिए खर्च करते हैं, यज्ञ के लिए खर्च करते हैं, या तप करने के लिए खर्च करते हैं, वो एक अलग कोटि का धर्म कर्म हो गया। ये जो अर्थ प्राप्ति के लिए जो कर्म है उसी को यहाँ पर कर्म समझा जाना चाहिए। तो यही कर्म का संदर्भ है। और दूसरा जो शब्द है मोक्ष, मोक्ष का संदर्भ यहाँ पर इस प्रकार है कि मोक्ष को यहाँ पर अजर अमर अविनाशी कहा गया है। मोक्ष जो है वह ऐसी स्थिति है कि आप अविनाशी हो सकते हो, आप अमरत्व प्राप्त कर सकते हो। और यही श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं कि जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, उसका विनाश संभव ही नहीं है, और आत्मा है वो अमर है, अजर है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, वह सदैव के लिए है, वह था है और रहेगा। तो यही है। तो ये इस यहाँ पर मोक्ष का अर्थ यही समझा जाना चाहिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि एक बहुत ही धनी पुरुष है जिसके पास बहुत ही धन वैभव ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ है, सुसंपन्न है, मानो कि इस पृथ्वी का राजा है और सब कुछ है, जो सोचता है उसके पास सब कुछ है, और वो सब धन संपत्ति को एकत्रित करके फिर वह एक सुप्रसिद्ध समर्थ गुरु के पास जाता है, उनके चरण में, और फिर उनको पूछता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि मैं ये जानता हूं कि जीवन के जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष उसमें से अंतिम है मगर सबसे श्रेष्ठ है। तो अगर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे पता है मोक्ष श्रेष्ठ है, मुझे अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मैं अपनी संपत्ति लेकर आया हूं, तो आप ये मुझे बताइए कि इसमें से मैं कितनी संपत्ति दूं जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? थोड़ी सी दूं, आधी दूं, या पूरी सब कुछ मैं आपको दे दूं तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? तो गुरु कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, 3 बार कहते हैं। और ये 3 बार जो कहने का जो एक कस्टम था हमारे पूर्वजों में, तो ये इसका कारण ये है कि अगर मैं एक बार आपको कहूं कि मैं आपको कुछ प्रॉमिस करूं, मैं आपको ये दूंगा, और फिर मैं फिर से कहूं दूसरी बार तीसरी बार कहूं, तो मैं अपने ही वचन को दोबारा पुष्टि कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी एक सशक्त कर रहा हूं, मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं, अपने आप से भी बात कर रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं कि सुनो, मैं किसी को कह रहा हूं तो मैं दूसरी बार कह रहा हूं, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं कि सुनो, आपको ये करना है। मन वाणी शरीर से मैं आपको ये वचन देता हूं कि मैं ये करूंगा। एक एग्जाम्पल रामायण का मैं देता हूं। जब ये ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं दशरथ राजा को मिलने के लिए, और फिर वो बताते हैं कि मेरे जो यज्ञ है उसमें बहुत ही आपत्ति आ रही है, तो मुझे सहायता चाहिए। तो राजा दशरथ बिना ही सोचे उनको 3 बार वचन दे देते हैं कि आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, ऐसा 3 बार बोल देते हैं, ये मेरा वचन है। तो ऐसा वो कह देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, और फिर यही वचन के चलते फिर उनको राम भगवान को देने पड़ते हैं। मगर उनको ये पता नहीं होता है कि ऋषि राम जी को ही मांग लेंगे, राम उनका सबसे प्रिय पुत्र होता है और वो उनको बहुत ही लाडले होते हैं, तो वह उनको पृथक नहीं होना चाहते, फिर वह रोते हैं, फिर वह मान जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि मनाते हैं। मगर ये जो 3 बार कहने की प्रथा है वो बहुत ही प्राचीन है, और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर मैं कुछ प्रॉमिस कर दूं, कमिटमेंट कर दूं, वचन दे दूं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो ये 3 बार कहने की प्रथा वो जो हमारे ही धर्म से, हमारे ही ग्रंथों में से आई है कि मैं अगर आपको वचन दूं तो मैं दूसरी बार भी बोलूंगा, तीसरी बार मैं अपने आप को भी वचन दे रहा हूं। तो अगर समझो ये शिष्य राजा गुरु के पास जाते हैं और फिर गुरु स्टबर्नली एकदम सुशक्त होकर फिर कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप अपनी सारी संपत्ति अगर आप दे देंगे तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो ये उनको कह देते हैं। और फिर आद्य शंकराचार्य आगे जाके एक श्रुति का प्रमाण देते हैं
क्योंकि यहाँ पर न्याय शास्त्र में जो चौथा प्रमाण है उसको शब्द प्रमाण कहा गया है। शब्द माने श्रुति, श्रुति माने वेद उपनिषद। तो बृहदारण्य के उपनिषद का एक सुंदर व्याख्यान है जिसमें एक छोटी सी कथा है। याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी दो पत्नी, एक पत्नी का नाम होता है कात्यायनी और दूसरी का नाम होता है मैत्रेयी। तो कात्यायनी जो होती है वह स्वभाव से ही भौतिकवादी होती है, उसको भौतिक सुख सुविधा में बहुत ही रुचि होती है, रची पची रहती है, सब सामग्री भोग्य पदार्थ उनको और चाहिए होता है। तो मटीरियल लाइफ उनको बहुत ही पसंद है, तो वैसी ही होती है स्वभाव से। और मैत्रेयी जो होती है वो ब्रह्मवादिनी होती है, उनको भौतिक वस्तुओं में इतनी कोई रुचि नहीं होती है, वह उनका अक्लिष्ट उपयोग ही करती है कि जितना उपयोग करना चाहिए उतना करना चाहिए, मगर उसमें आसक्त नहीं होती है। तो मैत्रेयी बहुत ही विद्वान होती है। और जब याज्ञवल्क्य ऋषि निर्णय लेते हैं कि मैं अभी जंगल में जाके रहने जा रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ गृहस्थ का, तो मेरी जो भी संपत्ति है उसका मैं 2 भाग कर दूंगा, आप दोनों को एक एक भाग दे दूंगा, तो आप सुख सुविधा से रहिए। तो कात्यायनी ये सुन के बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। उसको तो यही चाहिए होता है कि भाई अभी तो मैं मालकिन बन जाऊंगी, आधे मेरे पति के जो आधी संपत्ति की मालकिन बन जाऊंगी, तो उनको प्रसन्नता होती है। और दूसरी जो पत्नी मैत्रेयी होती है वो उदास हो जाती है, वो बहुत ही सोचती है। फिर वो प्रश्न पूछती है अपने पति को कि आप जो मेरे लिए ये संपत्ति धन छोड़ के जाने वाले हैं, कृपा करके ये बताइए कि ये जो धन संपत्ति है, क्या ये सभी मुझे अजर अमर अविनाशी होने के लिए सहायता करेंगे? क्या मुझे अविनाशी अमर बना सकते हैं? क्या ये धन संपत्ति मुझे मोक्ष दिलाने में समर्थ है? तो ये प्रश्न पूछती है। याज्ञवल्क्य का एक ही सेंटेंस में उत्तर है कि सुनो, ये जो भी मैंने आपको धन संपत्ति आपको दी है, ये केवल आपको सुख और सुविधा दे सकते हैं, आपको आराम दे सकते हैं, आपको मोक्ष नहीं दे सकते। ये सुंदर उत्तर सिंपल एक ही सेंटेंस में उन्होंने कह दिया कि आप जो भी सुख सुविधा, आप जो भी भोग्य पदार्थ है, आप उनको अगर भोगेंगे तो भोगने के बाद फिर भोग की तृष्णा समाप्त हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आपके पास अच्छा घर है, आप घर में थोड़े वर्ष रह लिए, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास गाड़ी है, गाड़ी भी चला ली, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, आप मानो पूरे विश्व के धनी व्यक्ति बन गए। धनी व्यक्ति बनने के बाद सब कुछ भोग भी लिया, फिर आप क्या करेंगे? आप चंद्र पे चले गए, फिर आप क्या करेंगे? आप मंगल पे चले गए, फिर आप क्या करेंगे? तो ये अगर आप अपने आप से पूछेंगे, अपने मन में ही आपकी जो सारी इच्छाएं हैं, मानो कि आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई है और आप यही मानिए कि मेरे पास सब कुछ है, फिर आगे क्या? आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, अगर आप पूछेंगे, आपको इसका उत्तर भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। क्योंकि भौतिक संसार में इसका अंत ही नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार की रचना ही ऐसी है कि वह एक इच्छा से 10 को उत्पन्न करती है, 10 से 100, 100 से 1000, ऐसी इच्छाएं बढ़ती रहती है। और इच्छाओं के अधीन अगर पुरुष हो जाता है तो वह तो एक खिलौना बन के रह जाता है, वह कभी भी मुक्त ही नहीं हो पाता है, वह तो एक छोटा सा खिलौना हो जाता है और इच्छाएं उनको यहाँ वहाँ नचाती है। तो यही श्लोक से आद्य शंकराचार्य हमें कहते हैं कि यही सिद्धांत भी सिद्ध होता है कि कर्म जो है वह मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। कर्म कौन से कर्म? जो अर्थोपार्जन के लिए जो हम कर्म करते हैं कि प्रॉपर्टी लेना है, धन प्राप्त करना है, गाड़ी बंगला, उससे हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। भले ही हम बहुत सारा धन कमाए, धन कमाने के बाद क्या? भौतिकवादियों का जो जीवन होता है वह ऐसा ही होता है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मगर उनके जीवन में ऐसी मनोस्थिति ही नहीं आती है कि हमें जो प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर चुके, हमने जो ज्ञान प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर चुके, हमको जो करना था वो भी कर चुके, हमें जहाँ जाना था वहाँ जा चुके। तो ऐसा संतोष नाम का जो रत्न है वो भौतिकवादियों के जीवन में असंभव है, असंभव है, असंभव है, कभी भी नहीं आ सकता है। ये अपनी इच्छाओं के अधीन रहेंगे और यहाँ वहाँ भटकते ही रहेंगे।
और कोई संतोषी पुरुष अगर कोई छोटे से जंगल में कुटिया में रह रहा है और ब्रह्म ज्ञानी है, मगर उसके पास संतोष नाम का जो रत्न है, तो उसी के माध्यम से उसके पास सब कुछ आ सकता है। ब्रह्म स्वयं उसके पास आ सकता है। जो ओम प्रणव है वह भी स्वयं उसका चयन करता है। तो यही हमें सिद्ध किया है। और इसके पहले के श्लोक में भी सुंदर वर्णन है कि भले ही कोई पुरुष सभी शास्त्र पढ़ ले, सभी सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर ले, किसी देवताओं का, बहुत सारे देवताओं की स्तुति करे, यज्ञ बहुत ही कर ले, कोई महान देवताओं का इतने सारे जप कर ले, देवताओं को प्राप्त भी कर ले, वरदान प्राप्त कर ले, फिर भी जब तक वो मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा के साथ एक नहीं देखता है, अपनी आत्मा और परमात्मा का एकत्व का अनुभव नहीं करता है, उसका बोध नहीं होता है, तब तक अगर 100 ब्रह्मा जितना जीवन भी उसको मिले तो भी वह भटकता ही रहेगा, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 100 ब्रह्मा का जीवन भी अगर कोई मनुष्य जिए और भौतिक संसार में ही भटकता रहे और फिर भी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, वह अपनी इच्छाओं के अधीन रहेगा, इंद्रियों के अधीन रहेगा और वो भटकता ही रहेगा। तो ऐसी दुर्गति कही गई है भौतिकवादियों की यहाँ पर। तो ये सुंदर श्लोक से हमें यही सिद्ध होता है कि हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, अगर हम धर्म का आलंबन ले, धर्म के माध्यम से हम जो कर्म हमें मिले गए हैं वर्णाश्रम के आधार पर वही हम कर्म करें, या आपत्ति काल में जो हमें नियम हमें बताए गए हैं उसका हम चयन करें, तो हमको अर्थ उचित मात्रा में प्राप्त हो सकता है। उस अर्थ से फिर हमारी कामनाएं पूर्ण हो सकती है, माने हम हमारी कामना पूर्ण हो सकती है, काम हमें प्राप्त हो सकता है। तो धर्म अर्थ काम हमें प्राप्त हो और फिर मोक्ष आता है। तो यहाँ पर ये भी एक सिद्धांत है मनुस्मृति का कि धर्म के माध्यम से हमको जो अर्थ प्राप्त होता है तो उससे हमको सुमति आती है, सुमति से हमें धर्म और पालन करने की दृढ़ता आती है, और फिर धर्म के कार्य हम और करते हैं तो हम धर्म में हमारी धृति और मजबूत हो जाती है, और फिर हम धर्म के कार्य करते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे हम में वैराग उत्पन्न होता है। क्योंकि धर्म के माध्यम से अगर हम अर्थ प्राप्त करें तो हमको वैराग स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, क्योंकि शास्त्र का वचन है, मनुस्मृति का वचन है, धर्म का वास्तविक फल जो है वह वैराग्य ही है। लोग कहते हैं कि हम बहुत धर्म का पालन करते हैं और हमें बहुत दुख मिलते हैं, मगर भगवान आपको अगर इतने सारा अर्थ दे दे और आप भटक जाए तो इससे अच्छा तो यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा दुख दे, मगर आप उस दुख में भगवान को याद करते रहें ताकि आप भगवान के अधिक समीप जा पाए। भगवान के अधिक समीप जाने का माध्यम धर्म है, वैराग है। संसार के प्रति अगर वैराग उत्पन्न होता है और भगवत प्राप्ति के प्रति राग उत्पन्न होता है तो वह श्रेष्ठ फल है धर्म का। धर्म का वास्तविक स्वरूप और फल वैराग्य ही है। तो ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, पूरे विश्व में, कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें दुख मिलता है। मगर दुख जो मिलता है, अगर आप ये माने कि दुख, क्या, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ये दुख जो है भगवान ने आपको पहले, आपके जो पहले के कुकर्म है, अधर्म जो किया था उसका फल आप जल्दी से भोग ले, ये दुख के माध्यम से दुख काट ले और फिर तुरंत ही आपको ये जो धर्म कर रहे हैं, धर्म के कार्य का फल आपको तुरंत ही बाद मिलने लगेगा? तो क्या ऐसा भी क्रम हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि भगवान आपको पहले दुख दे और फिर बाद में सुख दे, क्योंकि दुख में जो हमारी मति हो जाती है वो बहुत ही सुमति हो जाती है और बहुत ही हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाता है। हमें जो विकार होते हैं धीरे धीरे बहुत ही निर्बल हो जाते हैं, विकारों की पकड़ हमारे मन पर निर्बल हो जाती है और हम धीरे धीरे पवित्र होने लगते हैं दुख के माध्यम से। दुख के माध्यम से हम सहन करते हैं और सहनशील बनने के माध्यम से हम फिर धीरे धीरे विकारों से मुक्त होने लगते हैं और फिर हम पवित्र होने लगते हैं। उसके बाद में जो धन आता है, संपत्ति आती है, तो फिर हम
वो विवेक बुद्धि भी आती है, और विवेक बुद्धि से हम उस धन का उचित उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, और उसके माध्यम से हमें धर्म भी कमाते हैं, धर्म प्राप्त करते हैं, और फिर वह सुमति से हमें फिर वैराग उत्पन्न होता है, और वैराग जब आता है, ज्ञान आता है, भक्ति आती है, तो ये तीनों एक साथ आने के बाद फिर ऐसी मनोस्थिति हमारी हो जाती है कि हमको फिर गृहस्थ में हमको ये संसार के प्रति हमको वैराग स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगता है, दृढ़ होने लगता है, और केवल हम अंतर ध्यान होने लगते हैं धर्म के, भगवान के प्रति इतनी रति बढ़ जाती है, इतनी रुचि बढ़ जाती है, और संसार के प्रति हम विरक्त होते जाते हैं। तो धर्म का वास्तविक स्वरूप और फल वैराग्य ही है। तो ये सुंदर श्लोक की व्याख्या यहाँ पर मैंने की है टीकाकारों के माध्यम से, और आद्य शंकराचार्य ने यही कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों का जो क्रम है हमें क्रम फॉलो करना है, और मोक्ष जो है वह चारों में से सुंदर रत्न है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है, और धर्म के माध्यम से अगर हम जिएंगे तो वो स्वाभाविक रूप से वैराग और ज्ञान हम में आएगा, और वो जो ज्ञान होता है वह गुरु के माध्यम से अगर हम प्राप्त करें, गुरु के चरण में बैठकर अपने आप को समर्पित कर दे, और गुरु का जो ज्ञान, गुरु की जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उपदेश होते हैं, उसको अगर हम क्रियान्वित करने लगे धीरे धीरे, तो वो ज्ञान हमारे अंदर परिपक्व होता जाता है, और फिर हमें धीरे धीरे वैराग और विवेक दोनों एक साथ मिलके फिर हमको ब्रह्म की तरफ लेके जाते हैं, हमें भगवान की तरफ रति बढ़ जाती है बहुत ही। तो ये सुंदर, ये क्रम ऐसा ही होना चाहिए। और मनुस्मृति का मैंने रेफरेंस दिया, आदि शंकराचार्य का रेफरेंस दिया, भागवत पुराण का भी रेफरेंस दिया कि ये जो जीवन है ये जीविका के लिए नहीं है, जीवन है जीवन जन जगदीश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो मनुष्य जो योनि में जन्म मिला है बहुत ही दुर्लभ है, तो इसको हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं होने देना है, हमको उचित कार्य में, धर्म के कार्य में, मोक्ष में ही खर्च करना है। हम ऐसे ही जीवन जिए कि हम मोक्ष तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, क्योंकि हम इस साइकिल से मुक्त हो सके, फिर जन्म लेना फिर मरना, नहीं तो फिर हम 100 ब्रह्मा का जो जीवन है तब तक भी भटकते रहेंगे। तो ये बोध बहुत ही आवश्यक है कि हमारी आत्मा और परमात्मा का एकत्व जो है वो हमें इसी जन्म में प्राप्त करके ही रहना है, ऐसा दृढ़ विश्वास लेके हम गुरु के पास जाए और शास्त्रों का चयन करें, शास्त्र और गुरु से हम ये सब ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे ही अगर सुंदर वीडियोस आपको पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही सुंदर चैनल है। उसमें से आपको केवल और केवल शास्त्र ही मिलेंगे, शास्त्र ही सुनने को मिलेंगे। अगर आप जो सुनते हैं वो आपके जीवन में चरितार्थ करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो आपके जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा, मंगल होने लगेगा, और आपका उद्धार और कल्याण अवश्य होने लगेगा। शिव शंकर प्रलयंकर।